watching the exclusive. I'm Padmaja Joshi. It is the final leg and you can expect it to be as dramatic as possible. We are currently in Gorakhpur and over the next few days we are going to be traveling across this final battleground of eastern Uttar Pradesh. But speaking of dramatic developments, as the final phase of polling draws closer, it also means that the clock is ticking for Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal to again go back to jail. Remember, he had been given permission by the Supreme Court. Interim bail had been granted to him only on the condition that he surrenders on the 2nd of June after all the election hearing is over. But with 5 days left for that date to come close, Arvind Kejriwal has now asked the Supreme Court for another 7 days. He says that his weight has been drastically reducing and that he needs to undergo a series of more tests. His ketone levels are high. There is a dramatic loss of weight. What if there is some serious problem afoot? In fact, Atishi, one of Arvind Kejriwal's ministers, went so far as to suggest that perhaps it could even be something as serious as cancer. उनकी तो तहे दिल से इच्छा है कि केजरीवाल मर जाए। मैंने 7 दिन तक केवल अपने टेस्ट कराने के लिए, क्योंकि मेरा वजन 7 किलो, आपको वैसे ही दिख रहा होगा, जो लोग मेरे को जानते हैं कि वजन बहुत ज्यादा गिर गया है। 7 किलो वजन अगर किसी व्यक्ति का 1 महीने में गिर जाए बिना किसी कारण के, तो ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम होती है। तो डॉक्टर्स ने कहा है, बहुत सारे टेस्ट्स लिखे हैं, 1 ही हफ्ता मैंने मांगा है कि 1 हफ्ते के अंदर मैं अपने सारे टेस्ट करा लूंगा। As everybody knows, when he was in ED custody, when he was in judicial custody, he lost 7 kgs of weight. This sudden weight loss, unexplained weight loss, is a matter of concern for doctors. Despite being out of custody and under medical supervision, he has not been able to regain that weight again. Early tests have indicated that his ketone levels are extremely high. Unexplained sudden weight loss along with high ketone levels could be the indicator of some serious medical ailments, including damage to the kidneys, including cancer as well. Now remember, ever since Arvind Kejriwal has come out on bail, the BJP has opposed it tooth and nail. Some had even gone on to suggest that this was some special relief that was being given to him without any past precedent. But this extension has naturally, or rather this appeal for an extension has raised the hackles of the opposition BJP in Delhi, where they are asking, if you're fit enough to be addressing rallies from Delhi to Punjab to go to Maharashtra, then why is it that you're not fit enough to go back to jail? कि जब से उनको कस्टडी में लिया गया 15 मार्च से, तब से लगातार उनका जो वजन है वो घट रहा है। तिहाड़ में भी उनका वजन घट रहा था और बाद में जब वो दिल्ली में अपने घर भी आ गए हैं, तब भी उनका वजन जो है वापस वो रीगेन नहीं कर रहे हैं, जो कि जनरली काफी चिंता का विषय होता है। कई टेस्ट उन्होंने कराए, मगर डॉक्टर्स की राय ये है कि उनको 2 चीजें, एक तो वजन का घटना और दूसरा कीटोन का हाई लेवल होना इंडिकेट करता है कि कहीं कोई गंभीर बीमारी ना हो। दिल्ली के भ्रष्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नौटंकी फिर चालू हो गई। पूरे प्रचार के दौरान इनकी तबीयत ठीक थी, पूरे प्रचार के दौरान इनका स्वास्थ्य ठीक था, इंडी गठबंधन का प्रचार करना, दिल्ली के चुनाव प्रचार में प्रचार करना बिल्कुल ठीक थे। लेकिन अब नई नई बीमारियों का हवाला दिया जा रहा है, नए नए टेस्ट करवाने हैं और रिपोर्ट जमा कराइए प्राइवेट हॉस्पिटल की, किसी सरकारी हॉस्पिटल की नहीं। जानबूझकर अंतरिम जमानत की छूट का फायदा उठाना चाहते हैं और अब चुनाव प्रचार के लिए पंजाब में है। अगर स्वास्थ्य खराब है तो फिर पंजाब चुनाव में क्या कर रहे हैं? So is there something seriously wrong with Arvind Kejriwal's health? What explains this loss of weight? Does he need to undergo another series of critical tests, or is this a play at sympathy and trying to get even more relief from the court? Joining us on the debate, we have Parvinder Singh Sethi, political analyst, supports and defends the Aam Aadmi Party. Karan Verma, author. But my first question is to Ajay Mahawar, MLA of the BJP. Ajay ji, क्यों भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल जी के टेस्ट को अपोज कर रही है? वो पहले ही कह चुके हैं कि आप उनको जान से मारना चाहते हैं। अब उनका वजन घट रहा है, वो टेस्ट कराना चाहते हैं, आप इसमें अड़ंगा लगा रहे हैं। नमस्कार। केजरीवाल इतना झूठ बोल चुके हैं देश और दिल्ली के सामने कि लोगों ने उन पर विश्वास करना बंद कर दिया है। और अभी वो कैंपेन में जब आए, जिसके कारण उनको एंट्री बेल मिली, तो लगातार रोड शोज और भाषणों में वो फिट दिखे, कहीं से कहीं तक अनफिट नहीं दिखे।
लोग तो जब आते हैं तब पाप का प्रायश्चित करते हैं। इन्होंने आकर के स्वाति मालीवाल को पिटवा करके और पाप करने का काम किया है। इनका मानसिक फिटनेस ठीक है या नहीं है, यह तो एक सवाल हो सकता है, लेकिन फिजिकली वो सिर्फ एक बहाना बना रहे हैं। हमको इसमें कोई संशय नहीं। लगातार, और क्यों नहीं, उन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से क्यों नहीं कराया टेस्ट? सारा प्राइवेट हॉस्पिटल से काम करके चुपचाप काम करना चाहते हैं। बार बार वो स्वास्थ्य एक बहाना है, एंट्रीम जेल की बेल को बढ़ाना है, इनका यही मकसद है। कहीं से कहीं तक अभी भी वो पंजाब गए हुए हैं। ओके, बताइए सेठी साहब, बीमारी एक बहाना है, सिर्फ जेल के बाहर की मोहलत को बढ़ाना है। सामने से बोल रहे हैं। इतने दिन थे इनके पास, 20 दिन से ज्यादा थे, करा लेते अपने सारे टेस्ट सेठी साहब। नहीं, देखिए बड़ा दुखद है कि हर बात के अंदर भारतीय जनता पार्टी को राजनीति चाहिए। आप अभी की रिपोर्ट देखिए, दिल्ली का और हिंदुस्तान का जो टेम्परेचर देखिए, पिछले 72 घंटे के अंदर 29 लोगों को ब्रेन हेमरेज की शिकायत आई है। और उनका जो सडन जो वेट लॉस है, डॉक्टर्स को उन्होंने चेकअप कराया, डॉक्टर्स की सलाह के अनुसार ही जो उनका वेट 7 किलो घट गया। केजरीवाल जी घर में बैठे बढ़ रहा है, वो भी तो दिन में 3-3 रैलीज कर रहे हैं। अगर उनकी हेल्थ इतनी खराब है तो फिर वो बाहर ना जाए रैली करने में। आज तो वो पंजाब थे, पहले वो कह रहे हैं मेरी तबीयत नासाज है, फिर वो पंजाब में चले जाते हैं प्रचार के लिए। जब नहीं, वो प्रचार के लिए बाहर आए थे। जब उन्होंने अपनी जांच कराई, जो डॉक्टर्स ने उनको प्रिस्क्राइब करा, उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर्स ने कुछ कहा होगा कि भी आपको बहुत सारी जांच की आवश्यकता है, क्योंकि सडन लॉस ऑफ वेट जो है वो कई कारण हो सकते हैं। कैंसर भी हो सकता है और किडनी की प्रॉब्लम भी हो सकती है और कोई सीरियस प्रॉब्लम निकल सकती है। उसके लिए उनको समय चाहिए। अगर कोर्ट समझेगा कि अगर जेल से निकलने के एक दिन बाद, एक हफ्ता पहले, 2 सप्ताह पहले ये वेट लॉस कब हो रहा है, या आज के आज ही वेट लॉस हुआ? नहीं, ये अभी जो जेल के अंदर हुआ और बाहर सडन वेट लॉस हुआ, उसको देखते हुए उन्होंने जांच कराई। जांच कराने के बाद डॉक्टर्स ने जो उनको एडवाइस करा, उसको उन डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार उन्होंने समय मांगा। अगर कोर्ट समझेगा कि ये कह रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में एक बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, अगर कोर्ट समझे, नहीं, ये तो वो जांच चल रही है। उन्होंने कहा, डॉक्टर्स ने कहा है कि आपकी बहुत सारी जांच होनी है जिसके लिए समय चाहिए। नहीं, मैं तो वहां नहीं, बहुत सारी जांच, करण वर्मा, बहुत सारी जांच है। अब अगर द डॉक्टर्स, वी शुड बाउ टू द विजडम ऑफ द डॉक्टर्स। डॉक्टर्स आर सेइंग पेट स्कैन, सीटी स्कैन नीड्स टू बी डन, सो इट नीड्स टू बी डन। व्हाई द पॉलिटिक्स, करण वर्मा? No, you're right on that, Padmaja. There should be no politics on someone's personal health. But here is a man who's given a flurry of interviews in the last 48 hours. He has done roadshows crisscrossed across the country, and he has flouted all the directives given by the Supreme Court. Hear what he says. He says, अगर आपने मुझे वोट दिया, 5 जून को मैं बाहर निकल आऊंगा. I mean, he is trying to insinuate, and the Supreme Court must take cognizance of this, that the courts are governed by the government in power. He goes on to say कि ये केस फर्जी है, even though he was told by the court in no less honest terms that you should not talk on the merits of the case. Under his watch, in his residence, a woman has been assaulted. So for someone to do all of this and then say कि oh, my health is a priority, it speaks of duplicity in standards. You can't be selective. And why is he risking his health? Why is he crisscrossing across the country even today in such high temperatures? Why is he doing this? You can't be selective that, okay, I will today risk my health and tomorrow I will take refuge of the health card and get my bail extended. This cannot work. He should stop all campaign work right now, right this minute, to send out this message that there is something that requires attention pertaining to my health. खत्म कर देंगे You वो can't अपना be selective प्रचार, about it. उनको आज ही The खत्म कर Supreme देना Court needs चाहिए to pull him डॉक्टर up. की सलाह पर। पंजाब से फौरन लौटना चाहिए। नहीं, भारतीय
नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द यही है। भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं उनके पेट में दर्द इसी बात का है कि अरविंद केजरीवाल अपना प्रचार क्यों नहीं बंद करते। अरे डॉक्टर्स ने उनको प्रिस्क्राइब करा है कि आपको आपके टेस्ट होने हैं, वो रेगुलर तो अपना चेकअप करा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पेट की क्या बात है? वो तो डॉक्टर भी कहेंगे कि भाई अगर कोई बीमार है, अगर मैं बीमार हूँ, वो ये थोड़ा कहेंगे कि जाइए फ्लाइट पकड़ करके जाइए और पूरे दुनिया में घूमना शुरू कर दीजिए। वो कहेंगे घर पे बैठिए, काढ़ा पीजिए। नहीं आप, अरे मैडम वो मेडिसिन दे रहे होंगे, उसके साथ साथ उन्होंने टेस्ट लिखे हैं, वो टेस्ट रिपोर्ट्स आएंगी, उसके बाद पता लगेगा कि इफ देयर इज एनी सीरियस प्रॉब्लम। अगर सीरियस प्रॉब्लम नहीं होगी तो वो दोबारा अंदर चले जाएंगे। तो इसमें इतनी कंट्रोवर्सी करने की क्या आवश्यकता है? वो कह रहे हैं कि प्रचार के ऊपर टेस्ट हैं जो कि बिल्कुल जब सरेंडर की तिथि करीब आती है तभी वो सारे टेस्ट हो जाते हैं। ये तो ऐसा लग रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट को टेस्ट कर रहे हैं एक तरीके से। नहीं अभी नहीं मैडम, आप देखो ना, आप भी डॉक्टर बन जाएंगी, करण वर्मा जज बन जाएंगे तो कैसे बात चलेगी? डॉक्टर्स ने अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर वो जो भी काम कर रहे हैं, मेडिसिन ले रहे होंगे। उसके बाद ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन में बिठा के उनके सारे टेस्ट हो जाएंगे। कुछ टेस्ट होते हैं जिनके अंदर मेडिसिन दी जाती है। डॉक्टर तो कई मंत्री भी बने हुए हैं जो कह रहे हैं कि कीटोन लेवल हाई है और वेट लॉस हो रहा है। So it could be cancer. That's a very serious thing to say, by the way. But let me bring in Ajay Mahawar again. अजय जी, एक बात तो सच है, वो मुख्यमंत्री हैं, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अगर इतनी सीरियस बात है, कैंसर वाली बात है, तो उसको मतलब हमें ऐसे तो डिसमिस नहीं करना चाहिए। भगवान ना करे। कहना है अगर वो सीरियस प्रॉब्लम में है तो फिर वो कंपेन क्यों कर रहे हैं? अपनी हेल्थ से खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? अपने बच्चों की जिंदगी से, उसमें भी फिर तबीयत खराब ज्यादा होगी तो भाजपा पे दोष मर देंगे। ही इज अ लायर नंबर ऑफ 1। पूरी दुनिया के सबसे बड़े लायर हैं वो, इसीलिए झूठे हैं, इसीलिए उन्होंने दुनिया में सबसे ज्यादा माफी मांगी है। चाहे वो गडकरी जी से मांगी, चाहे अरुण जी से मांगी, जेटली जी से, चाहे शीला दीक्षित से मांगी, किस चीज से माफी नहीं मांगी? क्योंकि वो झूठ बोलते हैं, यूटर्न लेते हैं। उनकी कसमें, दुनिया ने जो आदमी बच्चों की कसम खाकर झूठ बोल सकता हो, वो आदमी राजनीति के लिए कुछ भी कर सकता है। तो मेरा ये मानना है कि निश्चित तौर पर अजय जी ये बताइए कल को भगवान ना करे उनके टेस्ट में कुछ सीरियस निकल आया तो दिस विल बी ऑन योर कॉन्शियंस कि आपने उनके हेल्थ कंसर्न्स को ऐसे डिसमिस करके झूठा बोल दिया। भाई सच में हो सकता है कि उनका सडन वेट लॉस हुआ हो, कोई डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हो। मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से उनके अच्छे हेल्थ की दुआ करता हूं, प्रभु से कामना करता हूं वो स्वस्थ रहे, वो अच्छी बात होनी चाहिए, लेकिन वो डबल स्टैंडर्ड ना रहे। आज ही तुरंत इसी वक्त अपने सारे दौरों को कैंसिल करें और कैंसिल करके तुरंत डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में एडमिट हो। सारे रिपोर्ट्स तुरंत रातों रात आने चाहिए और जो भी उनको मेडिकल हेल्प चाहिए उनको देनी चाहिए। हम भी प्रभु से दुआ करेंगे। बताइए, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए एंड प्रेफरेबली एक दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल। सेठी साहब नहीं, अच्छा नहीं मैडम, किस व्यक्ति को कब हॉस्पिटल में एडमिट होना है वो बीजेपी थोड़ी बताएगी। डॉक्टर विल टेल कि आपको कब एडमिट होना है, कब क्या। अभी वो मेडिसिन पे हैं। अगर ऐसी स्टेज आएगी कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना है तो अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर ही विल एडमिट टू द हॉस्पिटल। अरे ये बीजेपी वाले कह रहे हैं जी उन्होंने कसम खाई, उन्होंने ये करा, ये जो जवाब रट के आए होते हैं इन्होंने वही जवाब देना। आप प्रश्न कोई भी करो, इनका टेप रिकॉर्डर उसी बात पे चलेगा। अरे डॉक्टर की एडवाइस के ऊपर वो एडमिट होंगे, डॉक्टर की एडवाइस के ऊपर वो ये तो लॉजिकल सवाल है ना। अच्छा चलिए बाकी सब छोड़िए, मैं गोरखपुर में हूँ, शायद आई मिस दिस डिटेल। ये कौन से डॉक्टर हैं, ये कौन से स्पेशलिस्ट हैं? ये गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, ये जनरल प्रैक्टिशनर हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं? कौन डॉक्टर हैं जिन्होंने ये सलाह दी है? देखिए मैडम, मेरे पास उनकी वो रिपोर्ट तो नहीं है, लेकिन पक्की बात ये है कि किसी बड़े हॉस्पिटल में उनकी जांच हो रही है और बड़े बड़े डॉक्टर, और हो सकता है कि जब इस तरह की पोजीशन आती है तो एक जनरल फिजिशियन देखता है, उसके बाद वो प्रिस्क्राइब करता है कि किस स्पेशलिस्ट की जरूरत है। अगर आपको किडनी के डॉक्टर की जरूरत है या आपको गैस्ट्रो के डॉक्टर की जरूरत है, 20 तारीख को शुरू हो गई थी।
या फिर ये जेल के डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, क्योंकि जेल में भी उनका लगातार चेकअप होता रहा है। नहीं, जब देखिए जेल में भी हुआ है, जब उनका सडन वेट लॉस हुआ, आके उन्होंने डेफिनेटली डॉक्टर्स को दिखाया होगा, उसके बाद उन्होंने कुछ मेडिसिन दी होगी और उसके बाद वेट लॉस तो उनका जेल में ही हो रहा था ना, बिकॉज आई रिमेम्बर कि पहले सौरभ भारद्वाज ने, फिर आतिशी जी ने, फिर दिलीप पांडे ने, फिर संजय सिंह ने, सबने एक एक दिन पीसी करके बोला था कि उनका वेट घटता चला जा रहा है, घटता चला जा रहा है, उनको मारने की कोशिश की जा रही है, उनका बीपी हाई है, शुगर लो है, फिर शुगर आया था, बीपी लो था। तो ये तो बहुत टाइम से हो रहा है। मेरा सवाल बस ये है कि आज के दिन क्यों टेस्ट किए जा रहे हैं? नहीं, आप मेरी बात को समझे ना, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कुछ मेडिसिन देता है कि अगर इन मेडिसिन से रिकवरी नहीं होती, फिर वो जांच लिखता है, और अगर वो सोचता है कि ये नहीं, ये सीरियस है, एक दिन में ही तो डॉक्टर सारा कुछ नहीं कर देगा। पहले वो कुछ मेडिसिन देगा, कुछ टेस्ट लिखेगा, उसके बाद उसको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे तो Karan समझ आएगा कि लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। फर्स्ट द डॉक्टर गेव अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर मेडिसिन, they didn't work, now more tests are needed. It's a fairly transparent process. Karan Verma. नहीं, द बेस्ट थिंग इज सेठी साहब कॉन्फिडेंस कि पहले मेडिसिन दी गई, फिर टॉनिक्स दिए गए, एज इफ ही हिमसेल्फ इज अ डॉक्टर एंड इज प्रिवी टू ऑल द इंफॉर्मेशन। पद्मजा, यू नो, वी कैन नॉट डिसमिस हेल्थ कंसर्न्स, आई से दिस विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट एक बात पक्की है, ना सेठी साहब को केजरीवाल जी से प्यार है, ना इनकी पार्टी में किसी को प्यार है, अदरवाइज दे वुड टुडे ओनली come out and openly say कि Arvind Kejriwal should not campaign anymore. He is far too precious for us than one election and he should sit at home. We are bothered about his health. I am saying this, that okay, if you want to get medical checkups done, stop your campaign work right now. Supreme Court needs to pull him up, that you cannot talk about the case that is going on and you cannot say that 5 जून को मैं जेल से रिहा हो जाऊंगा अगर सरकार बदल गई. You cannot talk that rubbish. Go and take care of your health and stop your campaign work. But सेठी साहब ये नहीं कह रहे. सेठी साहब उनकी हेल्थ के साथ खेलने को तैयार है. Just like Atishi and Saurabh and Bhagwant Maan. They should all say today कि केजरीवाल आप घर बैठो, आपको अब अपनी सेहत का ध्यान रखना है. Your health is our first priority. कह सकते हैं सेठी साहब यहां पे. सेठी साहब बोलिए आप यहां पर. प्लीज बोलिए कि केजरीवाल हेल्थ इज ऑफ इम्पोर्टेंस. अगर मोदी जी को कोई बात है, आप नहीं, आप हॉटलाइन पे प्रधानमंत्री अरे भाई वो खुद कह रहे हैं ये बात है, मतलब सलाह के लिए बने हुए डॉक्टर, और अब आप कह रहे हैं कमाल कर रहे हैं आप जो बात कर रहे हो उसका कोई लॉजिक ही नहीं है. जो आप बात कर रहे हैं उसका कोई लॉजिक ही नहीं है. उस बात का कोई लॉजिक नहीं है. मुझे 1 हफ्ते का एक्सटेंशन चाहिए, तो भाई अभी कैंपेन. ओके, अजय महावर आल्सो वांट्स टू कम इन. अजय, अरे सर, डॉक्टर की रिपोर्ट को चैलेंज थोड़ी कर रहे होगे आप. यू आर नॉट अ डॉक्टर, यू आर नॉट अ डॉक्टर. आप डॉक्टर बन जाते हो, कभी आप जज बन जाते हो. ये अगर कोर्ट भी देखेगा तो उनकी रिपोर्ट. अजय जी, मेरा ये कहना है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी नहीं, इनकी पार्टी, इनके साथी इनकी जान के दुश्मन है. अदरवाइज राजनीति से ज्यादा जरूरी मुख्यमंत्री केजरीवाल की जिंदगी होनी चाहिए. 7 किलो वजन जेल के अंदर घट गया था, तो बाहर आने के बाद पहले जांच क्यों नहीं, पहले टेस्ट क्यों नहीं हुए, पहले हॉस्पिटल में एडमिट क्यों नहीं हुए. अभी ये कह रहे हैं कि टेस्ट की रिपोर्ट आएगी, फिर मेडिसिन तय होगा. अरे भाई, तो फिर एडवांस में बेल अप्लाई क्यों कर रहे हो, क्यों उसको एक्सटेंड करना चाहते हो. अगर आपको केजरीवाल की हेल्थ की इतनी चिंता थी, होनी ही चाहिए. पड़ों वाली बात कर रहे हो. ये ये तो अलग ही ट्विस्ट दे रहे हैं. तो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है जानबूझ के एंडेंजर कर रही है केजरीवाल जी को. यस. नहीं मैडम, इनके तर्क बेसलेस हैं. अगर ये दे आर चैलेंजिंग द डॉक्टर्स, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं. अगर कोर्ट भी इसको सुनेगी, इस मसले को सुनेगी, तो उनकी रिपोर्ट्स की जांच की जाएगी. पैरेलली कोर्ट डिफ्यूट करेगा अपने डॉक्टर्स को, या ये रेफर करेगा कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए. अगर कोर्ट ऐसा समझेगा कि ये रिपोर्ट सही नहीं है और डॉक्टर जो एडवाइस कर रहा है वो सही नहीं है, तो दे विल नॉट गिव द बेल. अगर वो समझेंगे कि इन सारी रिपोर्ट्स की, इन सारी जांच की दूसरे डॉक्टर से क्रॉस एग्जामिन कराने की जरूरत पड़ेगी, तो क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा. ये तो बड़ी फेयर सी चीज है. आप अपने तर्क यहाँ बैठ के दे रहे हैं. आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेनी चाहिए, आपको मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए. अरे आप क्या बात कर रहे हैं. ना आप डॉक्टर हो, ना मैं डॉक्टर हूँ.
This is all on the advice of the doctor. No, you're Of course, absolutely उसको right, देखेगा but कि ये none जो of us are doctor ने doctors, advice but करा all है, of us yes, do have a little bit of common sense and logic, which makes one question that, God forbid, let's hope he's in the pink of health, but God forbid somebody is suffering from something so serious, so debilitating that he's constantly losing weight. Some people suggesting it could be a kidney problem, it could even be cancer. Wouldn't bed rest, absolute, complete and total bed rest, be the only possible solution while he undergoes tests, medication and possible treatment? I leave that to your wisdom. Thanks very much, all gentlemen, for joining me.